students, I am Ravi Bhushan, Director and HOD Physics of Quantum JE Academy. Earlier we have discussed how to find the volume and surface area of the solid rigid body. Okay, and मैंने बताया था जब क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर हो तब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे. इन केस ऑफ वॉल्यूम वी हैव टू कंसिडर द थिन डिस्क्स. ओके, while in case of surface area, curved surface area like, so we will have to consider the ring of given thickness. Okay, तो we come to one question. कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, इससे आपका इजीली समझ में आ जाएगा. लाइक we have a solid hemisphere, so it is a solid hemisphere of radius r. Okay, now we have to get volume of the hemisphere, first part, and the second one is curved surface area of the curved surface of hemisphere we have to get. Okay, तो मैंने क्या बताया है, आप एक वॉल्यूम के लिए पहले अगर हम वर्क करें और यहाँ वर्क करेंगे सरफेस एरिया के लिए. ओके, तो मैंने प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था कि व्हेनेवर यू हैव टू गेट वॉल्यूम, तो यू कंसीडर अ disk of given radius. Suppose this one is a disk of given radius and thickness it has dr. Suppose radius of this disk is r and this thickness we have dr. Okay, suppose this part is at what angle? Theta we have, and this small thickness is forming an angle d theta at the center. This small angle is d theta. Okay, so what is the value of r here? If we consider this triangle, this radius is r. If this angle is theta, this angle is also theta. Okay, theta wala side always comes in cos. It is r cos theta. Now we consider a disk. ये हमने डिस्क कंसिडर किया है of radius r and thickness dr. dr we may write r d theta. Okay, now what is the small volume of this disk? The small volume dv is equal to, मैंने बताया था area of cross section into what? Height. So what is area of cross section? It is pi r square. Okay, and into thickness is r d theta. We have dv is equal to pi. In place of r we will have to put r cos theta. Pi r square cos square theta into r d theta. Okay, now integrating both the sides we may find the total volume. The total volume will be integral of dv. जो कांस्टेंट से उनको बाहर ले लिया आपने, तो सी पाई आर क्यूब इज कांस्टेंट. फिर इंटीग्रल इज cos स्क्वायर थीटा डी थीटा. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? तो थीटा एंगल पे ये डिस्क है, अगर 0 से 90 तक हम इंटीग्रेट करें तो पूरा का पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाएगा. तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to pi by 2. Solving, we get the result v is equal to 2 by 3 pi r cube. एक और भी मेथड बताऊंगा मैं, वो ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको. ओके,
Now we have to get the curved surface area. तो curved surface area के we consider a ring of given thickness, right? So we consider a ring of radius r and thickness what? dr. dr again here is rd theta. Now what is the small area of this ring? Small area dA is equal to length of the ring, that is 2 pi r, into what? dr. So we have dA is equal to 2 pi, in place of r we'll put what? r cos theta, okay, into, in place of dr we'll put rd theta. Area we have 2 pi r square cos theta d theta, dA small area. Now integrate both the sides, we'll get the total area. कांस्टेंट को आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेट cos थीटा d थीटा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे आप? फ्रॉम 0 to pi by 2. सॉल्विंग इट a is equal to 2 pi r square, that is the curved surface area of this hemisphere. ओके, तो इस तरीके से जो है हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ हमने वॉल्यूम एंड एरिया फाइंड किया. Now we come to the next question. We have a cone. A cone given है. Radius of this cone is given r, and h is the height of this cone. Okay. Now we have to get the volume of this cone. इस cone का volume हमें चाहिए. Okay. तो इसको easily समझने के लिए एक वर्क करते हैं. वहाँ हेमिस्फेयर पे भी ये वाला पार्ट हम यूज कर सकते थे. ये कॉन्सेप्ट, दिस कोऑर्डिनेट इज सपोज x एंड दिस कोऑर्डिनेट इज y. ओके, आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते थे. ठीक है, मैं कोन को अगर ऐसे लूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों ही फाइंड करना, तो मैं इस तरीके से ले लेता हूँ. ओके, दिस वन इज द कोन ऑफ रेडियस r and height of the cone we have h. H is the height of cone. Okay, suppose this coordinate is x and this coordinate is y. We have to get the volume of this cone first, and second curved surface area of this cone. ये दोनों ही हमें फाइंड करना है यहाँ पे. ओके, तो से अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विल हैव टू कंसीडर अ डिस्क ऑफ गिवन थिकनेस. ओके, और अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें रिंग कंसीडर करना होगा. तो सपोज दिस पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज 0 0. दिस पॉइंट इज r and h. तो वी कंसीडर एनी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज x and y. ओके, तो यहाँ से हम y हाइट पे एक डिस्क या रिंग कंसिडर करते हैं ऑफ द गिवन थिकनेस. सपोज दिस थिकनेस वी हैव dy. Okay, then what is the radius of this disk? This coordinate is x. The radius of this disk this time is what? x. So see, it is a straight line. देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. सपोज दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल हमने थीटा कंसिडर किया.
This point is suppose x and y. This radius we have what? x. ये हाइट क्या है हमारे पास? y. और यहीं पे हमने एक स्मॉल थिकनेस का डिस्क या रिंग कंसिडर किया था. ओके, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? y is equal to mx. It is a straight line passing through the origin of coordinate system. Here m is equal to tan. This angle is theta, so this angle is 90 minus theta. Tan 90 minus theta into x. Okay, so y we have cot. This angle we have 90 minus theta. Cot theta into x. अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर लें, if we consider this right angle triangle, this radius is r, height is h, and this angle we have what? Theta. So what is the value of cot theta here? Cot theta का वैल्यू देखें तो बेस बाई परपेंडिकुलर इट इज h by r. ओके, तो वी राइट इट h by r into x. इससे हमारे पास x का रिजल्ट आ गया, x इज इक्वल टू y इंटू r by h. ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया x का वैल्यू, दैट इज द रेडियस. नाउ इफ वी हैव टू गेट द वॉल्यूम, one side we take volume and the other side we take surface area, which is what? Curve, right? So volume के लिए we have to consider a disk of given thickness. So it is a disk of thickness dy and radius what? x. Okay, इसका वॉल्यूम हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज स्मॉल वॉल्यूम? dv, that is cross section area pi x square into height is what? dy, that is pi. but x का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है y के टर्म में, it is pi r square by h square into y square dy. okay, now integrating both the sides we may get the volume of this cone. तो v is equal to integral dv, that is equal to जो कांस्टेंट है उनको बाहर आप ले लें, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज टेकन आउट and integral y square dy, it should be integrated from 0 to what height? h height. So 0 to h, so it becomes h cube by 3. okay, so solving you get v is equal to 1 by 3 pi r square h. यही तो होता है ना, it is the volume of the cone. Similarly we may find the surface area. तो surface area में we'll have to consider, यहाँ पे हमने क्या लिया है? डिस्क लिया है, बट सरफेस एरिया में यही डिस्क की जगह हमें क्या लेना होगा? रिंग लेना होगा ऑफ द गिवन रेडियस एंड थिकनेस इज dy. इट इज अ रिंग. ओके, एंड दिस रेडियस वी हैव व्हाट? x. नाउ कर्व सरफेस एरिया वी हैव टू गेट द स्मॉल एरिया dA, स्मॉल कर्व सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाट? 2 pi x, सर्कुलर है तो 2 pi r, and to thickness is what? dy. So in place of x we have what? y r by h into dy. So integrating both the sides we get the curved surface area, that is equal to, जो constant है बाहर ले लिया, it is 2 pi r by h. okay, and this result is integral y dy, it should be integrated from 0 to h. तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो we get the result a कर्व सरफेस एरिया 2 pi r by h, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी आर गेटिंग द रिजल्ट h स्क्वायर बाई 2. ये कैंसिल हो गया, तो द रिजल्ट इज pi r h. ओके, इट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो अकॉर्डिंगली जो है आप किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं. और एक बार अगर वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया तो मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आपका मास का वैल्यू आ जाएगा और चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. We have a curve y is equal to 3x square. Suppose it is a parabolic curve. Is rotated about y-axis and the volume formed has been filled with the material having charge density rho. यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ले लिया हमने. फाइंड फर्स्ट पार्ट total charge of solid. Second, curved surface area of the volume formed if material has been filled up to a height h हाइट तक हमने मटेरियल को फिल किया है. ओके, तो वॉल्यूम आ जाने से आप चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज. कर्व सरफेस एरिया के लिए तो मैंने कॉन्स्टेंट बताया. देखिए क्या है, वी हैव अ कर्व y is equal to fx. This one is the curve. Okay, now this curve has been y is equal to 3x square has been rotated and filled with the material up to a height h. Okay, this height is h we have. Okay, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया पहले. तो सपोज दिस पॉइंट इज x एंड y, ये पॉइंट x एंड y कंसिडर किया. तो ओरिजिन से सपोज दिस वन इज ओरिजिन, ओरिजिन से y हाइट पे वी कंसिडर अ डिस्क और रिंग. अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो डिस्क कंसिडर करेंगे और सरफेस एरिया कर्व फाइंड करना हो तो रिंग फॉर्म करेंगे हम. ठीक है, दिस रिंग हैज रेडियस व्हाट x. ओके, तो एक साइड हम फिर वॉल्यूम फाइंड करते हैं और दूसरी साइड कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. Left side we have volume and right side we have curved surface area. Okay, volume, this radius is x and the thickness is dy. तो देखिए दिस कर्व इज व्हाट y is equal to 3x square. तो x का वैल्यू भी है y by root 3. ओके, तो what is the small volume of the disk? This one is a disk. वॉल्यूम में हम डिस्क लेते हैं. तो dv is equal to क्रॉस सेक्शन एरिया पाई एक्स स्क्वायर एंड थिकनेस इज व्हाट dy. टोटल वॉल्यूम के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. पाई एक्स स्क्वायर वी हैव व्हाट y by 3 dy. ओके, तो पाई y by 3 dy. अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? वी शुड इंटीग्रेट इट फ्रॉम पाई टू h. ठीक है, तो पाई से h तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा. ओके, नाउ अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो यहाँ क्या लेना होगा? रिंग कंसिडर करना होगा ऑफ थिकनेस x, सॉरी रेडियस x and thickness dy. What is the small area of this ring?
that is length of this ring 2 pi x into width, that is what, dy. We have dA is equal to 2 pi y by, it is root y actually, है ना, तो रूट y by रूट 3 इंटू डी वाई। तब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, ये एरिया आ जाएगा 2 पाई बाई रूट 3 इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू हाइट h। ओके, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, तो बेसिकली अब डिस्कस कर रहे थे वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ज्योमेट्री। ओके, तो वॉल्यूम हमने डिस्कस किया और किस तरीके से फाइंड करते हैं ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया था। तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन वी हैव टू गेट, नॉट फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया है कि जो भी ज्योमेट्री का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, इट इज़ कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ थिन रिंग्स। तो हमने क्या किया, एक रिंग कंसिडर किया ऑफ द गिवन रेडियस एंड इट इज़ एट अ हाइट y, ये y हाइट पे हमने रिंग को कंसिडर किया है। ओके, सो दिस वन इज़ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0। और पीछे मैंने आपको लाइन का इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ ले रहे हैं। सी this one is a line passing through the origin of coordinate system. If this angle is theta, then this angle is what, 90 degree minus theta. तो अकॉर्डिंगली इस लाइन का इक्वेशन कंसिडर किया हमने और कैलकुलेट कर लिया लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू आर बाई एच इंटू वाई। वाई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंग टू दिस थीटा। ओके, तो वी कंसिडर अ रिंग ऑफ द गिवन थिकनेस। तो दिस हाइट इज डी वाई, यहाँ रेडियस हमने क्या लिया है x, दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई। ओके, तो अब इस रिंग को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। तो दिस वन इज द रिंग, तो रेडियस ऑफ दिस रिंग इज x, दिस हाइट इज dy, लेकिन हमें ये स्लांट लेंथ कंसिडर करना होगा। दिस स्लांट लेंथ इज सपोज व्हाट, dl, ये इंक्लाइन वाला पार्ट, क्योंकि जो है इसमें हमें एरिया में हमें ये स्ट्रेट एरिया, सिलेंड्रिकल एरिया फाइंड नहीं करना है, यह हमें कर्व एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पे जो है आपका एक स्लोप भी है। तो दिस साइड इज dy वी हैव, दिस वन इज dy एंड दिस वन इज व्हाट, dl। तो अगर ये नीचे एंगल थीटा है, ये वाला एंगल वी हैव व्हाट, थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो व्हाट, थीटा। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया यूजिंग दिस ट्राइंगल वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस वी हैव dy एंड हाइट वी हैव व्हाट, dl। तो हमने dl का वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट इज dy cos थीटा। अब हमने बोला है क्या कि जब भी आपको एरिया फाइंड करना हो जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, तो एरिया के लिए वी हैव टू यूज व्हाट, स्मॉल एरिया, लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो एक क्रॉस सेक्शन का लेंथ x रेडियस क्या है, तो 2 पाई x इंटू व्हाट, द स्लांट है dl। तो dl हमने कंसिडर कर लिया और dl की जगह हमने क्या पुट किया, dy बाई cos थीटा जो हमने कैलकुलेट किया था, ये dl यहाँ पुट कर दिया। तो dA भी है दिस रिजल्ट। और x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, अभी हमने इस लाइन का इक्वेशन निकाला था, तो हमें चाहिए x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हमने रखा, ये पीछे बताया है मैंने अभी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन में। तो वैल्यू पुट करके वी इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू h हाइट। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट द रिजल्ट, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सरफेस एरिया, इसी को जो है हमने 9th-10th में जो है बेसिक क्लासेस में किया था, पाई आर एल, एल इज व्हाट, दिस लेंथ। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। सी व्हाट इज द क्वेश्चन, वी हैव अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी कर्व हो सकता है, फंक्शन इज डिफाइंड, इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया एंड द वॉल्यूम फॉर्म्ड। देखिए अगर किसी कर्व को रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे इट इज़ द कर्व, इट इज सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको हमने y कोऑर्डिनेट के अबाउट रोटेट किया। तो रोटेट करने के बाद ये हमारा ज्योमेट्री फॉर्म हो रहा है, इट इज़ द ज्योमेट्री फॉर्म। ओके, ये स्ट्रक्चर जनरेट हुआ and the volume formed has been filled with a material having uniform charge density। एक चार्ज डेंसिटी या मास डेंसिटी भी हो सकता था। मास डेंसिटी होता तो हमें मास फाइंड करना होता, चार्ज डेंसिटी है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज अप टू हाइट h। इसको हमने किस साइड तक फिल किया है, h हाइट तक। तो दिस हाइट इज डिफाइंड
H. ओके, इट इज H. ठीक है. फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द ज्योमेट्री. इस ज्योमेट्री के अंदर टोटल चार्ज फाइंड करना है. ऑल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द डिफाइंड ज्योमेट्री. इस डिफाइंड ज्योमेट्री का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमें फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्टली वी विल हैव टू फाइंड व्हाट द वॉल्यूम. तो सी, ड्यू टू रोटेशन क्रॉस सेक्शन फॉर्म इज ऑलवेज व्हाट, सर्कुलर. जो क्रॉस सेक्शन फॉर्म हुआ है वो क्या है, सर्कुलर है. तो यहाँ से y हाइट पे, एट अ हाइट y, वी कंसिडर पॉइंट हियर. तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x. दिस कोऑर्डिनेट इज xy. तो x इज एक्टिंग एज रेडियस हियर एंड y इज हाइट. तो हमने क्या करना होता है कि वॉल्यूम इज कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क. अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो वॉल्यूम के लिए हम डिस्क कंसिडर करते हैं, और सरफेस एरिया के लिए भी कंसिडर रिंग, जैसे अभी मैंने कोन में बताया है. तो सी, इट इज अ डिस्क ऑफ रेडियस x रेडियस है इसका, एंड थिकनेस व्हाट, dy. इट हैज थिकनेस dy. तो व्हाट इज द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द डिस्क. इस वाले डिस्क का स्मॉल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन है तो दैट्स व्हाई एरिया इज पाई एक्स स्क्वायर, हाइट इज व्हाट, dy. ओके, तो वी गेट द स्मॉल वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर dy. अब जो है इंटीग्रेट किया हमने दोनों साइड, तो v इज इक्वल टू पाई 0 टू h हाइट तक फिल किया है हमने, तो 0 टू h एक्स स्क्वायर. जब y x का फंक्शन है तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो y में वेरिएशन आ गया तो 0 टू हाइट तक. तो इंटीग्रेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वॉल्यूम. अगर हमें चार्ज फाइंड करना है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया है चार्ज डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू वी हैव डी क्यू बाई डी वी. दैट मीन्स डी वी इज इक्वल टू व्हाट, रो डी क्यू. तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू आ गया और रो डी वी. ओके, रो डी वी. अब जो है रो, अब यहाँ पे ये हो सकता था कि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो, तो y का फंक्शन हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसा भी हो यहाँ पे हम पुट करेंगे. और जो है डी वी इज व्हाट वी हैव दिस वैल्यू, स्मॉल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था पाई एक्स स्क्वायर डी वाई. तो यहाँ पे हमने रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई रखा. इंटीग्रेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, चार्ज का वैल्यू आ गया. अब हमें फाइंड करना है व्हाट, द फ्लक्स. तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम वी हैव फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू इन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. ओके.